The topic for today's meeting is treatment of patients and management of dental clinic in the wake of COVID-19. And the speaker for today's meeting is none other than Dr. Rajiv Gulati sir, and who is an icon for most of us in our profession. And he is the vice chairman of Purvanchal Institute of Dental Sciences, GIDA. And he has been working tirelessly to find an almost foolproof protocol to be followed while opening our dental clinics in the wake of COVID-19. So without wasting much of your time, sir, it is over to you, sir. Please guide us and tell us what are the do's and the don'ts that we have to follow on opening our dental clinic. Please, sir. Yeah, okay. Thank you, Dr. Shalvi. And thank you for your kind words. Actually, nobody can file a foolproof method for this. So that's why I said almost foolproof. But yeah, almost, yeah. But we are trying. So okay. Now the first thing is that we have all attended so many webinars, seminars, expert advices, and I think every dentist is over flooded with all this. So abhi kya hai ki after all this, I am still as confused. In fact, I'm more confused than what I was before I started attending these. तो अब हम लोगों को जो है वो हमारा पर्पस इस सेमिनार का, इस मीटिंग का ये है कि हम लोग पहले I'll give you a brief thing of what I think should be done, and thereafter all of us should given their opinions, और एक हम कंसेंसस पे पहुंचे कि हम किस तरीके से अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हुए कि we belong to an economically poorer section of the country. So whatever protocols that we need to define or we need to talk about should be such which can be followed within these constraints. हम ये नहीं कर सकते कि हम बहुत हाई फाई, इसी बिकॉज होता क्या है कि हाई फाई सॉल्यूशंस आर गुड फॉर हाई फाई क्लिनिक्स, but 95% of the patients which are taken care of in the country are done by people like us. तो हम जो भी सोल्यूशन ढूंढे उसके अंदर ढूंढे कि हम जो है वो पेशेंट को जस्टिस भी कर सकें, अपने प्रोफेशन को सेव भी कर सकें, क्योंकि हमारा प्रोफेशन इस समय सबसे ज़्यादा रिस्क पे है और सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है, और साथ साथ जो है वी कैन मेक डेंटिस्ट्री प्राउड बाय डूइंग गुड वर्क. सो अभी मैंने इसको अपने प्रेजेंटेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला पार्ट तो ये है कि आपका वेटिंग रूम का प्रोटोकॉल, आपका रिसेप्शन का प्रोटोकॉल, आपका वेटिंग रूम का प्रोटोकॉल, आपकी क्लिनिक का प्रोटोकॉल, और चौथा आपका अपना प्रोटोकॉल, क्योंकि आप ही तो इसके एक्चुअली हीरो हैं. तो हम 1 बाय 1 जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे. पहली चीज जो है हम रिसेप्शन की बात करते हैं. रिसेप्शन अब आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गई है. वजह क्या है कि वहीं पे जब मरीज आता है और वहाँ पे आप मरीज की स्क्रीनिंग करते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप इस पेशेंट को टेकअप करेंगे कि नहीं. ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है. और जो हमने पढ़ा है, कई लोग जो है वो लिखते हैं कि ओनली बाय अपॉइंटमेंट्स, ओनली बाय दिस. देखिए, ये मैं इस समय जो भी बात कर रहा हूँ, I am talking about 95% of the clinics, how they should be run. Those high-ended clinics which only audio is not there, Dr. Tayyab is saying. Dr. Tayyab, 1 minute, I will check. Sir, आप continue रहिए, I will check. अच्छा, ठीक है. So now that becomes a very important part. तो आपका जो आपके क्लिनिक के बाहर जो है वो आपका रिसेप्शन होगा, जो कि आपका स्क्रीनिंग एरिया बोलिए उसको, या आप उसको फ्लू क्लिनिक बोलिए, जो भी इसको आप बोलना चाहें. वहाँ पे आपका जो है वो एक स्टाफ वहाँ मौजूद रहेगा, who is wearing gloves, a cap, face mask, and what is required is that he needs a thermal scanner and he needs a pulse oximeter. उसके बाद आप उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन का टेस्ट करते हैं.
यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि मैंने जो है वो कई सारे सेमिनार वेबिनार सब अटेंड किए, आज तक किसी ने एक बात ये नहीं कही कि उसके साथ जो अटेंडेंट आता है पेशेंट के साथ, उसका भी हमें जो है वो थर्मल स्कैनिंग करनी चाहिए, उसका भी हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है भाई? आप देखिए, पेशेंट आपके पास में आया, आज आज के तारीख में if he is running temperature, he'll have 2 tablets, he'll come to you and you'll say कि he doesn't have any temperature. So it really doesn't, thermal scanning as far as my thing goes does not have too much of a value today. But at the same time, the attendant who's there, uska thermal scanning may have value because he may not, if he's unwell and he's coming with this particular person, so he may be a potential carrier. So I feel that whatever tests which are going to be done, thermal scanning and oxygen saturation should be done for both of them. Secondly, जो है वो oxygen saturation has a higher importance in this. Why? Because you know that this disease attacks the lungs, and any patient who comes to you with an oxygen saturation of less than 90%, you should avoid. You should also make sure that the patient has downloaded this Arogya Setu app, which is now becoming compulsory for everybody. And उसके बाद जो है, once you have done that, you must see the travel history of the patient. जो एक स्क्रीनिंग फॉर्म है पेशेंट से आपको भरवाना है। अभी पहले क्या है ना, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि ये चीजें आज की तारीख में जब आपके माइग्रेंट लेबर्स या आपके लोग जो लॉकडाउन में आपके शहर के बाहर थे, नाउ दे आर रिटर्निंग होम, so this thing becomes very relevant, more so from this point of view that जैसे लोग हमारे उस जमाने में भी सब डेंटिस्ट हैव डन देयर प्रैक्टिस, दे हैव वर्कड ऑन पेशेंट्स। वो कहते हैं कि साहब अभी पता नहीं क्यों इतने प्रोटोकॉल ही बता रहे हैं, हमने तो पेशेंट पे काम किया, कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो एरोसॉल भी चलाया, कुछ नहीं हुआ। भाई आप जहाँ पे प्रैक्टिस यहाँ रह रहे थे, आपका तो जो है 2 महीने तक करीब लॉकडाउन रहा, ना कोई अंदर आ पाया ना कोई बाहर जा पाया, तो वैसे ही वो क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया। जितने भी पेशेंट थे they were non-COVID patients for all practical purposes. So nothing happened to you. Now today, when those patients who are coming from outside also come to you, then in that event, it is you have to be very very careful. You see, because anybody who has a travel history, a recent travel history from another state, you should say no to the patient. Tell him to come back after 14 days. That is very very important, and I feel that treatment should be deferred, because you have the right to decide whether you want this patient or not. After all, it is your health at stake. Then we come to the waiting room protocol. वेटिंग रूम में जब पेशेंट आता है तो वहाँ पे उसको आपको प्रिपेयर करना होता है, आपके स्टाफ को, कि वो आपको आपके पास आकर के अपना चेकअप कराए। अब एक काम जो है वो ज़रूर आप करिए, पहले अपने वेटिंग रूम में, अपने क्लिनिक में जितनी आपकी डिग्रीज हैं, जितने सर्टिफिकेट हैं, जितनी पेंटिंग्स हैं, जो भी आपने एग्जॉटिक चीज़ें भी लगा रखी हैं, सब हटा दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं दे देन एक्ट एज कैच प्लेसेस where your virus can be lodged. So बाद में सर्टिफिकेट लग जाएंगे, we don't want कि at some given time हम ही लोगों की फोटो वहाँ लग जाए। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है आपसे, जहाँ तक हो सके इंक्लूडिंग कर्टन्स, everything should be removed so that there is no lodgement area. Now once the patient comes to you, comes to the waiting room, उसका जो है वो आपका अटेंडेंट उसका हैंड वॉश कराएगा, हैंड सैनिटाइज कराएगा, जो प्रोटोकॉल होता है पूरा। उसके बाद ही इज मेड टू वेयर ग्लव्स, rinse his mouth with povidone iodine, wear a cap, and if you want you can give him an overall also, and he now comes to you to see you. The basic purpose of mouthwash with the povidone iodine again is that it reduces the viral load. हमारे प्रोटोकॉल में जो भी पर्पस है वो वायरल लोड कम करने का है, without spending too much. अब जब पेशेंट आपके पास में सपोज करिए 2 चेयर्स हैं, तो आप एक चेयर को एग्जामिनेशन चेयर बना लीजिए और एक चेयर को वर्किंग चेयर बना लीजिए। आपने एग्जामिनेशन चेयर पे पेशेंट को बिठाया, वो पेशेंट जो है बिकॉज हिज हैंड्स आल्सो कवर्ड विद ग्लव्स एंड he had a cap and everything, so he is just sitting on the chair. You examine the patient. If you do not have if you have only one chair, you can probably examine the patient even outside in your waiting room in a normal plastic chair. एक बार आपने पेशेंट को एग्जामिन कर लिया,
उसके बाद आप जो है वो उसको ट्रीटमेंट तथा जो भी उसके चार्जेस हैं आपने उसको बता दिए। आप ये भी जानते हैं कि इस समय कौन चीज़ें आपको करनी है, कौन चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसका ध्यान रखते पेशेंट को ट्रीटमेंट बताइएगा, क्योंकि हम भी जानते हैं अभी कि एरोसोल जनरेशन जो है वो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम और धीरे धीरे इक्विपमेंट्स आते जा रहे हैं जिसमें एरोसोल का यूज जनरेशन 50% कम हो गया है। So you can, gradually things will improve, and we will be able to do better, but at least let us start. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये आपने पेशेंट को बताया। उसके बाद अगर पेशेंट एग्री करता है तब एक आप उससे कंसेंट फॉर्म साइन कराइए। इससे पहले आपने जो फॉर्म साइन कराया था वो स्क्रीनिंग फॉर्म था, ये कंसेंट फॉर्म है। कंसेंट फॉर्म में जो है वो आपको लिख के देगा, अगर आपके पास नहीं हो तो हम आपको जो है वो इसी साइड पे आपको दिलवा देंगे कि वो जो है वो आपकी क्लिनिक से अगर बाहर जाता है और फ्यूचर में उसको कभी भी कोविड या कोई इसके सिम्टम्स होते हैं तो द क्लिनिक इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, राइट? नाउ वंस एंड देन उसके बाद बिफोर यू पुट हिम ऑन टू द चेयर, माय एडवाइस इज, हम लोग हैंड वॉश कराते हैं ना पेशेंट का, वो 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स का जो प्रोटोकॉल होता है, तो वो यही होता है ना कि जो फोम पूरा निकले, झाग निकले, तो उससे जो है वो वायरस जो है वो खत्म होता है। सिमिलरली जो है बिफोर यू स्टार्ट वर्क ऑन द पेशेंट, आप बाजार से टूथ ब्रशेज मंगवा लीजिए, वो 3-4 रुपए के जो है आपके बल्क में आ जाते हैं। पेस्ट आपके पास चिपरात सैंपल में पड़ा होता है, आप जो है वो पेशेंट को टूथब्रश दीजिए, उसको बोलिए कि वो जा करके कम से कम 3 मिनट या 4 मिनट तक ब्रश करे, जब तक कि खूब खूब फोम जो है वो ना आए। So in that way you will be able to reduce the viral load in the mouth also. After that you tell him to rinse with betadine solution or with povidone iodine solution, and you can work on the patient on a very reduced viral load, because remember, as far as we are concerned as of now, every patient is a potential COVID carrier. तो हमें पेशेंट को उस नज़र से देखना है, मतलब हमें जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो ये सोच के नहीं लेने हैं कि ये पेशेंट कोविड फ्री है। वो तो तभी कंफर्म हो सकता है जबकि उसका टेस्ट नेगेटिव है, जो कि इस समय जो चार्जेस हैं टेस्ट के 4,000 रुपए, वो ना प्रैक्टिकल है ना ही संभव। तो अब ये आपका वेटिंग रूम का जो है ये प्रोटोकॉल हो गया। अब आप आइए कंसल्टेशन में, जो आपका अपना क्लिनिक है उसमें जो है वो क्लिनिक के अंदर जो है वो अब सबसे पहले जो है लोग मेरे से ये पूछते हैं कि कब कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन आस्किंग कि बस होल्ड ऑन यार, जस्ट 1 मिनट सुनो, आप तैयार हो क्या प्रैक्टिस करने के लिए? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आप जो है वो क्लिनिक गए नहीं, आप किस पे डिपेंडेंट हो अपने काम के लिए? आपके इक्विपमेंट पे। आपने कभी जाके देखा कि आपकी चेयर ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है, आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक सामान है। कभी आपने कंप्रेसर चला के देखा कि कहीं आपका वाटर पाइप तो ब्लॉक नहीं है, एयर पाइप तो ब्लॉक नहीं है? आपके जितने सारे चार्जेबल आइटम्स हैं, जैसे आपका जो है वो अगर आपके पास एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, या पोर्टेबल एक्सरे है, या आपके पास में से ये लाइट क्यों गन है, या लैपटॉप है, फॉर दैट मैटर, ये सब चार्जेबल चीज़ें हैं। आपने उनको चार्ज किया कभी? 2 महीने डिस्चार्ज रहेंगी तो वैसे ही जैसे गाड़ी की बैटरी के लिए बोला जाता है, वैसे ही ये जो है खराब हो जाएंगे। तो एक काम तो वो करिए, और दूसरा काम, अभी अगर आपको लगता है कि क्लिनिक्स जल्दी खुलेंगी, आई थिंक यू शुड वेट टिल टुमारो, कि दूसरा काम ये करिए कि ये पीपीई तो आप समझिए कि आपको पहनना है जिंदगी भर जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। उसको आप पहन करके चाहे क्लिनिक में बैठिए चाहे घर में बैठिए, लेकिन 3 घंटा पहन के बैठिए उसको आप। इतना आसान नहीं है एडजस्ट होना, और इतना मुश्किल भी नहीं है। पीपी किट में आपको पहनना क्या होता है? पहले आपके अपने कपड़े हैं, आपकी पैंट शर्ट या व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, उसके ऊपर एक ओवरऑल है आपका, देन यू हैव वन N95 मास्क, उसके ऊपर यू हैव वन 3-ply मास्क। इफ यू वांट टू डू डेंटिस्ट्री, you will never go near the mouth without a N95 and without a 3-ply mask. You will not go only with a N95 and you will not go only with a, both these masks are mandatory, just remember that no matter what. उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे? एक गॉगल्स लगाएंगे, फिर एक कैप लगाएंगे। आप कैप के ऊपर जो है वो आप लगाएंगे एक शील्ड, फेस शील्ड, और फिर आप ग्लव्स पहनेंगे। इतना पहन करके जो है आप जो है जब आप बैठेंगे
आप एक बात ये समझिए कि आप जो है वो इन अ वे यू आर वेयरिंग 3 ग्लासेस। एक आपका अपना चश्मा है, एक प्रोटेक्टिव गॉगल्स हो गए और उसके बाद फेस शील्ड हो गया। अब इन 3 ग्लासेस के बीच में आपको जो है माउथ के अंदर जो है ट्रीटमेंट करना है। तो आपको आदत डालनी पड़ी, ऐसा ना हो कि जो है वो हम देख रहे हैं कि जो है ये मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर कर रहे हैं मैक्सिलरी मोलर में। तो और गर्मी आपको शुरू में बहुत लगेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं है। आप उसको यूज आप पहनो तो आप उसको अगर आप यूज करोगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड यू विल कंफर्टेबली बी एबल टू वर्क विद इट। ये नहीं कि पेशेंट अगर आपके क्लिनिक खुल गई, पेशेंट आया, आपने पेशेंट को बैठा दिया, फिर बोला कि यार रुको मैं पहले एडजस्ट कर दूं उसको, मैं देखूं यार कि कहाँ पे है। यू कांट डू दैट, यू सी, यू कांट डू दैट विद द पेशेंट। सो you wear that, and I would like to tell you about PPEs. See, there is so much of a hype about PPEs. हम लोग जो है, कोई कहता है कि जो है 2000 का ले लो जी, कोई कहता है 3500 का ले लो, 3000 का ले लो और हर पेशेंट के पास डिस्कार्ड करो। हम लोग वी आर नॉट वर्किंग इन अ कोविड वार्ड। हम लोग वी आर प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री, राइट? वी डोंट नीड ऑल दी स्टाइलिश PPPs। सी, कोई जरूरत नहीं है हमको। whether anybody agrees with me or not, I don't care, बट एक नॉर्मल जो है वो 80 to 90 GSM का PPP आप लीजिए और which cost you around 125 rupees and you wear the entire day. See, हमारा हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम अपने पेशेंट पे काम कर सकें, अपने आप को भी जो है वो सेफ रख सकें, पेशेंट को भी सेफ रख सकें। तो हम जो है वो क्यों इतना महंगा सामान लें? इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा तो ये सामान बेचने वालों ने कमाया, जिसके पास कोई काम नहीं था उसने पीपी बेचना शुरू कर दिया। तो ये somehow you see this is a very unfortunate thing, but then whatever it is you have to do it. So my suggestion is that आप जो है अभी भी अगर लॉकडाउन कंटिन्यू होता है, क्लिनिक्स नहीं खुलती हैं, आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट इतनी अगेंस्ट है डेंटल क्लिनिक्स को परमिशन देने के लिए? बिकॉज हम लोग जो है वो इतने हाई रिस्क पे हैं, अपने लिए भी और पेशेंट के लिए भी। आपको ये भ्रम खत्म करना है। आप ये प्रॉपर प्रिकॉशन लेके जब काम करेंगे, ये भ्रम खत्म होगा तो पेशेंट को भी आप कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी कॉन्फिडेंट होंगे और गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा, दे अलाउ यू टू प्रैक्टिस। अब उसके बाद जो है चलिए अब हम एक नेक्स्ट चीज पे आते हैं। एक जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है वो है अपना HCQ, हाइड्रोक्विनोलोन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो हमारी ट्रम्प साहब की दवाई थी। इसके बारे में बड़े बड़े कंफ्यूजन हुए, कोई कहता है कि लो, कोई कहता है ना लो। खैर मैंने आई हैव अटेंडेड ICMR की वर्कशॉप्स, आई हैव अटेंडेड वर्कशॉप्स बाय WHO ऑन द सेम ऐप and I have even heard the best of speakers. Everybody seems to agree on one simple fact that yes, अगर आपको अपना काम स्टार्ट करना है आज से 10 दिन के बाद में, तो आपको जो है इसका जो है वो डोज लेना चाहिए, जिसका डोज है कि 400 मिलीग्राम BD on the first day and then 400 milligrams weekly for 7 weeks. This is the prophylactic dose. It does not give you immunity. कहीं आपके मन में ये ना है कि मैंने ये डोज ले ली तो मेरे को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सबने एक्सेप्ट किया है कि दिस वर्क्स। इट इज जस्ट लाइक विटामिन सी, हम रोज खाएं तो ये नहीं कि हमें जुकाम नहीं होगा, लेकिन ये है कि हमको मालूम है विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। एंड कमिंग ऑन दिस पॉइंट ऑफ इम्यूनिटी, आई टेल यू 3 थिंग्स आर रिकमेंडेड, अगर आपको देनी चाहिए। बाकी जो भी आप इम्यूनिटी के दे रहे हैं आप लें। एक 500 मिलीग्राम्स विटामिन सी, एक विटामिन ई, और अपना जो है वो विटामिन डी करा लें, अगर कम हो तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन। These 3 things boost up your immunity to fight this problem multiple times. Besides जो बाकी आप जो भी अपने अदरक और whatever you are doing. So but one thing is there, before you start with this SCQ, you must, if you have a heart problem or an eye problem, you must consult your cardiologist or ophthalmologist, because it is known to cause some problems in that, and then only take it. अब now let's come to the clinic. क्लिनिक में जो है वो सबसे बड़ी चीज जो बार स्ट्रेस की जाती है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वेंटिलेशन के बारे में ये है कि आपके यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि हर चीज हर क्लिनिक में उपलब्ध हो, लेकिन जितना आपके पास है उतना तो आप कर ही सकते हैं। जो नहीं है वो तो खैर यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट।
जितनी खिड़कियां हैं सब खोल दीजिए. यू शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन एंड क्रॉस वेंटिलेशन. जहाँ पे नहीं है, अब उसका तो जो है, अब क्या हो गया है कि अब एयर कंडीशनिंग की बात आ गई. अब इस मौसम में जो है वो सडनली इट हैज बिकम सो हॉट, और फिर आप ये पूरा सूट पहन के बैठे हैं, तो अब आपको एसी भी चाहिए. अभी पहले तो ये था कि एसी शुड नॉट बी यूज्ड, ओनली नॉर्मल क्रॉस वेंटिलेशन. Anyway, today now there's a general consensus given by the government that window ACs and split ACs can be used. Central ACs cannot be used. तो विंडो एसी और स्प्लिट एसी जो है वो सबके क्लिनिक्स में दोनों में यही होता है. सेंट्रल जो एसी है वो नहीं यूज करने के गवर्नमेंट के कॉजेज सही हैं. अब उसको टेम्परेचर आप 24 से 26 के बीच में रखिए. और मैंने व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस आई केम अक्रॉस वन थिंग व्हिच इज मेड बाय 3M. 3M company has made air filters, which I found was a very good product. उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो 3M के ये फिल्टर्स हैं, ये आप उसमें ये दो 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 का एक पैक आता है, और करीब 500 या 400-500-600 रुपए के आसपास का है वो. आप साइड पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा. तो अगर आपका स्प्लिट एसी है तो आपको 2 लगाने पड़ेंगे, और अगर आपका विंडो एसी है तो आप 1 लगा दीजिए. तो उसमें क्या है कि that purifies the air which is coming out from your air conditioner. So again, it reduces the viral load. So in a smaller amount of investment, you are getting cleaner air, number one, and number two, even if it lasts for 3 months, you are hardly spending 100 rupees a month. दूसरा तरीका होता है कि आपने जो है वो एयर प्यूरीफायर लगा दिया. एयर प्यूरीफायर भी अच्छा तो होता है, लेकिन एक तो उसका दाम बहुत ज्यादा होता है, उसमें जो है हर 6 महीने में फिल्टर बदलना पड़ता है. So this is a easier way of getting clean air. This is what I feel. A second thing which you should always be doing is that uh, even if you're putting the AC on, some sort of a vent should be open outside. A window or an exhaust should be open so that cross ventilation keeps on taking place. और इसमें आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि जहां आप पेशेंट पे काम कर रहे हैं तो आप अपने ठीक पीछे छोटा सा टेबल फैन लगा दीजिए. और टेबल फैन की एयर जो है तो वो जो एयर आपसे आगे की तरफ जो है वो थ्रो करेगी, तो जो भी वायरल वो है वो बाहर जाएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा. तो ये एक स्मॉल थिंग विच यू कैन डू. बाकी बाय एंड लार्ज जो है ये चीज़ें हैं. कुछ चीज़ें जो और रिकमेंडेड हैं, वो एक तो ये N95 मास्क. N95 मास्क सबको मालूम है, ये 20 रुपए में भी टक्कर खाया करता था अमेजोन पे. फिर लोगों ने 700 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, 800 में बेचना शुरू कर दिया. तो वो everybody has taken advantage of this epidemic except for pandemic rather, except for doctors who are still struggling. तो उसका भी जो है वो जो मेथड प्रोटोकॉल आपको मालूम है रीयूज करने का, कि आप जो है वो चार N95 लीजिए, 4 उसमें पेपर बैग्स में डाल दीजिए और यूज इट. 4th डे पे यू कैन अगेन टेक आउट द फर्स्ट वन. बट ये तभी संभव है अगर आप N95 मास्क के ऊपर 3 ply मास्क लगाएं. अगर N95 के मास्क के ऊपर आपने 3 ply मास्क नहीं लगाया है तो आप ऐसे इसको रीयूज नहीं कर सकते. इसका ध्यान रखिएगा. दूसरा, कई लोगों ने ये बोला कि प्रिस्क्रिप्शन जो आता है उसको आपको हाथ से टच नहीं करना चाहिए, वो केमिस्ट के यहाँ पर नहीं कहाँ से होके आता है. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने बैग्स खरीद के रखे हुए हैं प्लास्टिक के, विच इज स्लाइटली थिकर प्लास्टिक, और उसमें जो है वो विच इज अलाउ परमिटेड बाय द गवर्नमेंट. उसके अंदर जो है वो उसको बोला है कि जब पेशेंट्स वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिस, जब पेशेंट्स आएंगे तो उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन डाल देना. So once that prescription comes to us, we can read what work we have done without any this thing. अच्छा, उसके बाद जो है हो गया. उसके बाद जो है वो then they are talking about cashless transactions. कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो हम लोग के इस पार्ट में पता नहीं कितने लोगों के पास आपके पास स्वाइप मशीन है. कैशलेस ट्रांजैक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है, और बड़ी जगहों में तो होता है. बट इन दैट इवेंट बस उसका तरीका यही है कि एक बैग आप ले लीजिए और बैग के अंदर जो है जितना भी कैश है आप उसको डाल दीजिए, 4-5 दिन के बाद यू कैन यूज. एंड नाउ द लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ टू हैंडल योर बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है. पर गवर्नमेंट का इतना फोकस है क्योंकि इस समय उसका डिस्पोजल अगर प्रॉपर नहीं होता है तो चांसेस ऑफ दिस डिजीज आर मल्टीपल.
वो भी कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, आपको 4 बिन्स चाहिए होते हैं, वो भी प्लास्टिक के होते हैं, फुट से ओपन करके, वो कलर कोडिंग होती है, आपको मालूम है, आप उसको लगा लीजिए। और आप लोगों ने पैसे दिए ही होंगे अपने उसके लिए, पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी लेने के लिए, तो उसी आदमी को जो है थोड़ा सा और दे दीजिए एंड लेट हिम टेक योर। So that finishes my thought process of. But there's a lot that you can say, but I am not here to preach. I'm just here to give you some tips. Baki, now it is open to you as to what you would like to talk about or say or ask, because everybody has something or the other whom he or she knows, which should be shared and can be shared. Yeah. What is negative ionizer? I haven't heard of it. If you could throw some light on it. Anything else? Yeah, good evening, doctor. Good evening. Yeah, can I just, this is Dr. Arun here from Punjab. Yeah. Can you just tell us which sanitization solution can be used in the clinic? Hypo? In which percentage, sir? 1%. And it can be used in the foggers also? No. In the goggles, you should use Foggers, sir, foggers. foggers. Yes, sir. No. In foggers, they don't recommend foggers. They are saying that you should be using the sanitizing solution, the sanitizers, that alcohol-based ones. That is 70% alcohol. Yeah. Because hypo smells bad. It Sir. smells very, very bad, and it's pretty toxic as well. If it can corrode metal, it can corrode your lungs also. So I guess you have to be very careful. So actually, the ideal thing which I have been doing, I have been doing this much before this lockdown. That, say, from the 1st of March, when this thing just came in. Whenever we used to see a patient, after the patient got up, we used to get that entire area cleaned with hypo, and the entire chair cleaned with your sanitizer, and let that be there for a couple of minutes. Wherever the patient could have touched, wherever we could have touched, that time, of course, we never wore the PPE because we were not aware of it. But even the handles of the light or wherever we could have touched, that was all sanitized. And sanitizers were very expensive, very difficult to come by, so we made our own sanitizer. So we actually have to, somehow you have to beat them, or otherwise you fall prey to them. So can we spray the hypo 1% solution on the patient who's coming in the reception or in the waiting area? No way. So yes, sir. No way. It's difficult. That has already been proven to be very, very harmful. In fact, even all these sanitization tunnels that had been made, even they have been closed down. You should not be spraying anything on the patient's body. Hypo so it's on the better to patient's use the 70% alcohol, I think. Why spray 70% alcohol on the patient's body? Why don't you just tell him to have a bath? No, before coming to the clinic? No, 70% of sanitizer, if you want to spray on the entire body, on his clothes. Yes, sir. Huh? Sir. No, I have not heard of this anywhere, and I don't think it makes too much of sense, because all the open areas that are there, you have given him a gown, you've given him gloves, you've given him a mask, you've given him a shoe cover, or rather foot cover, whatever it is. So, and then once he gets up, we have provided the thing, then it is not used. Okay. Yeah, and then you are sanitizing that.
You're sanitizing it, you're sanitizing the floor, you're sanitizing nearly everything and leaving it there for some time. So then all this loses its relevance. Then whatever you're using is sterilized, your sterilization protocol is there, you're using 2 pair of gloves, whatever it is, 2 pair of gloves if you're doing surgery, or otherwise 1 pair. So there the spray and all really doesn't have too much of a meaning. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you, sir. Yeah. So there is a question from Anurag Sharma. Should we change our PPE suit for each patient? That's what I said. I told you before also that PPE suits, we are not in a COVID ward. We are working on patients and we are maintaining adequate sterilization. We are doing active preparation of the patient. So we really do not need to change the PPE suit on every patient. We can use the same suit throughout the day, and only if there is some procedure in which there's a lot of splash of the blood on your PPE suit, you're doing some surgery and there's splash. In that event, you need to change it. Otherwise, you can use the same PPE suit for the entire day. Anyone else has any question to ask? Anyone else has any queries to clear? Or should we believe that we all are query free? Sir, there is a question from Dr. Tayyab. Sir, any particular type of handpiece recommended during this time? You can use micro motors, right? Air rotors are not recommended. Now, there are certain micro motors which have come in, which can be operated up to the speed of 2 lakh RPM. Now these micro motors work on the principle that air is not being used for them, water is being used for them. So you are, it is like, because whenever you use a micromotor in a patient, you get to know that there's a lot of heat generation. It's not easy to use a micromotor once you've used an air rotor. So cutting efficiency, even making small cavities, is very, very difficult. And because of the heat that is generated in a micromotor, it becomes all the more difficult. You've got to be very careful that you don't burn the patient's lip or the cheek. In that event, it is always advised. Now, these things which have come in, they attach to your regular air rotor, but I'm talking about the handpiece. But the rest of it, there's a separate system. So now this goes at a speed of 2 lakh RPM. The air is blocked. The air doesn't come in. It works through the motor. The water comes in, and the water comes in onto your tip. So what happens is that the aerosol production in this event is reduced considerably. It's reduced by probably 60% or even sometimes more than that. And now that the high-speed suctions are going to come in, so probably if you start using that, then it will be relatively safe to do your aerosol procedures. Non-aerosol actually, because you are not using air in any case. Two companies are making it. One company is making it. They are using endomotor along with this, basically, and of course it's twice the price. Doesn't make too much of sense because you have endomotor in any case. So why do you want one which has both of them and pay more than twice the price? And one company is coming up with just plain micromotor. Good evening, sir. Good evening. Sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. प्रकाश sir. हाँ जी. सर एक क्वेश्चन हमारा था जो काफी लोगों का क्वेश्चन होता है और मेरे से पूछा जाता है. जैसा कि हम लोगों ने आईपीसी ट्रेनिंग को अटेंड किया, जिन भी डॉक्टर्स ने और लोगों ने बताया, उसमें एक चीज ये दिया गया कि वायरस लोड को कम करने के लिए ईच एंड एवरी पेशेंट के एंट्री के बाद, एग्जिट के बाद, हमें अपने क्लिनिक को फिर से सैनिटाइज करना चाहिए. पोछा लगाना चाहिए,
और हाँ। सैनिटाइज करना चाहिए। छोटी हाँ। क्लिनिक्स जो हैं, जो 100, 200, 300 स्क्वायर फीट की जगह पे बनाई गई हैं ना, हाँ। वहाँ हाँ। पे कितना ये फिजिबल होगा, कितना नहीं होगा, और उससे उसके साथ ये कि कितना ये जरूरी है, इस पे सर कुछ थोड़ा सा हमको गाइड करें। ऐसा है कि सैनिटाइजेशन आफ्टर एवरी पेशेंट जो है इज मैंडेटरी, और आपको उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक आपके पास एक मेड होनी चाहिए। आप जो भी हाइपो का सोल्यूशन बनाते हैं, उससे एक बार पेशेंट निकला तो उसको पूरा जो है उस फ्लोर को, उसको एक जिसको पोछा लगाना बोलते हैं वो करना है। तो आपका वो सैनिटाइज हो गया फ्लोर। वॉल्स पे भी आप स्प्रे थोड़ा सा कर सकते हैं सैनिटाइजर, और जितना जो चेयर है उस चेयर के ऊपर आप जो है वो जो आपका जो हैंड सैनिटाइजर है उससे चेयर के आर्मरेस्ट और लाइट को आप क्लीन कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम लोग इस कंडीशन में, भगवान जाने कब पहुंचेंगे, जब भी पहुंचे, इस कंडीशन में ना पहुंच जाएं कि या तो हमारे पास में कोई एक टेस्ट ऐसा आ जाए जो कि सस्ता हो, और हम पेशेंट के ऊपर टेस्ट करके, जैसे HIV का टेस्ट आता है तो हम लोग रूटीन में किसी भी हर पेशेंट में HIV का टेस्ट कराते हैं, वैसे ही हम अपने पैथोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करके वी कैन प्रोबेबली जो है वो क्लब दिस टेस्ट अलॉन्ग विद दीज अदर टेस्ट व्हिच आर गेटिंग डन, और उसके बाद हम सेफली काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये हमारे पास में नहीं है और जब तक हमें कंफर्म नहीं कि ये पेशेंट जो है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस बात को कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। एक 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 वर्ड है वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड का मतलब ये होता है कि वो पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 60 है और उसको कोई सिम्टम नहीं, वो चल रहा है। तो इस वजह से जो है, इस वजह से मेरे को ये लगता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है सैनिटाइज करना। तभी मैंने बोला था कि आप अपने क्लिनिक के अंदर भी कोई पेंटिंग हो, कुछ भी हो, सब हटा लीजिए, पर्दे वर्दे सब हटा लीजिए, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे जब आप सैनिटाइज कर रहे हो तो वो जगह एक्सेसिबल ना हो, अप्रोचेबल ना हो। थैंक क्लिनिक यू छोटी या सर। बड़ी हो, सबसे बड़ी बात, सॉरी, हाँ। नहीं, थैंक यू सर। आपने जो बात बताई इसमें और भी कुछ चीजें जैसे निकल के आ गई कि यदि हाँ हम जी। ईच एंड एवरी पेशेंट में सैनिटाइज कर रहे हैं हम, हाँ। और एक बात निकल के आई टेस्ट के लिए, ये हाँ। फर्दर जब कभी ऐसा टेस्ट आ जाए तो हम लोग टेस्ट करके सब काम कर सकते हैं। यहाँ सर क्वेश्चन हाँ। ये है कि एज यू नो कि हम लोग का जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट है वो मल्टीपल विजिट के साथ है। यदि हाँ कल ठीक है। को ये टेस्ट आ भी गया और हमने टेस्ट करा के और हाँ। पेशेंट को इनटेक कर लिया और उसको 2-3 हाँ। दिन के बाद रिकॉल किया, तो क्या ये हाँ। फिजिबल है कि दोबारा जब वो पेशेंट हमारे चैम्बर में आएगा तो हाँ। कहीं से कुछ उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, संक्रमण नहीं हुआ होगा, या दोबारा हम इसी फिर से इस उसका जांच कराएंगे? हाँ, आपकी बात बहुत सही है। इसीलिए जो है अब ये प्रोटोकॉल में आ गया है कि आप एक सिटिंग में ही कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं करें। ये जो मल्टीपल मल्टीपल विजिट्स का जो था, एक ऑर्थोडोंटिस्ट को छोड़ दीजिए, तो मतलब अदरवाइज ये मल्टीपल विजिट्स का, इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि भाई अगर मरीज जो है वो 3 का ट्रीटमेंट एक साथ करा देता है तो उसको डिस्काउंट भी दे दीजिए। because so that the number of visits are reduced. हाँ, सही है कि हम लोग हाँ। रिड्यूस कर हाँ। सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में जैसे अभी आपने कहा आर्थो हाँ। और ब्रिजिंग, हाँ। इम्प्लांट, हाँ। इनमें शायद हमें अभी दिक्कत होगी मल्टीपल विजिट को ब्रेक करने में। देखिए ऐसा है, ब्रिज में तो मैं ब्रिज में कैसे होगी, नहीं मेरे को बात समझ में आई। वो तो 2 ही सिटिंग का प्रोसीजर होता है। इम्प्लांट ब्रिज का में भी यही 2 है। विजिट का। हाँ, हाँ। हम जनरल एक बात कर रहे हैं कि अगर ये टेस्ट आता है और हमें कोई ऐसा, जैसे एक सर्जरी ही करनी है आपको, है ना, आज आपको पेशेंट की सर्जरी करनी है जहाँ पे बहुत आपका ब्लड जो है, भाई मेन मेन हमको किससे डर लग रहा है, हमको किससे वो है भाई, या तो पेशेंट फेबाइल हो और उसको ये वेरियस स्नीजिंग, कॉफिंग, ये सारे सिम्टम्स हो। आजकल तो जो है वो खांसना भी एक जुर्म हो गया है, छींकना तो बिल्कुल महामारी हो गई है। हाँ, तो मतलब हम लोग इस युग में आ गए हैं। पहले जब आप छींकते थे तो लोग कहते थे कि गॉड ब्लेस यू, कहते हैं कि गेट लॉस्ट। तो मतलब इसी वे फ्रॉम वेयर वी हैव गॉन वेयर। तो अभी बाकी जब आपको सर्जरी करनी है किसी पेशेंट की, मेजर कोई सर्जरी भी करनी है, तो आप टेस्ट करा लीजिए, वो तो एक ही सिटिंग का प्रोसीजर है ना। वहां पे जहाँ ब्लड बहुत
जहाँ ब्लड का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, देयर यू हैव टू बी मोर केयरफुल। और बाकी जो है वो ये सैनिटाइज करना और ये तो मैंडेटरी है, अब इसको आपको करना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से तो आप इस जन्म में तो आपको करना पड़ेगा, अगले जन्म में अगर आप डेंटिस्ट पैदा होते हैं तो देन यू कैन रीडिसाइड, बट एज ऑफ नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। थैंक यू सर, डोंट हैव एनी थैंक यू, ऑप्शन। थैंक यू। So there is a question, what type of fumigation protocol is recommended? What sort of fumigation? Now there's a difference between fumigation and sanitization. You see, because some people I've been seeing that they write that fumigation should be done after every patient. You can't do fumigation after every patient. You see, sanitization is a different procedure where you're using your hypo to wipe the floors, wipe the walls. More so if your walls have, like, you had tiles on the walls, so it's much simpler. You can clean it with hypo, because after all, whatever, if there is any aerosol liberation, so it does go to the walls as well. So it should be done on the floor and the walls too. Now fumigation is something which ideally has always been done at the end of the day or at the end of the working hour if you have 2 shifts of clinic. And the protocol for fumigation, as far as I have been using it, we've been using it throughout 40 years of our clinic. We take these crystals. I'm forgetting the exact formula because my staff does it. But anyway, so potassium permanganate. We put potassium permanganate crystals into formalin. And what now I remember. So you take a जैसे मट्टी का बोल होता है, उसमें आपने जो है वो फॉर्मलिन डाला, फिर आपने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल दिए, और वो आदमी जो डालता है उसको हम एक फेस मास्क देते हैं, और डालते ही वो भागता है वहां, क्योंकि उससे फ्यूम्स निकलती है, और इतनी फ्यूम्स निकलती हैं कि वो पूरे उसको, एंड दे स्मेल ऑफुल. So you let that be overnight, and next day open the doors and do it. That is the way we have been doing fumigation. So fumigation can't be done after every patient, and the patient will run away and you will be left alone outside writing prescriptions. So there is a question from Dr. Arpita that she would like to know that the impression that is made for prosthetic purpose, how that will be handled. How that will be handled? Yes, sir. Actually, एक तो जो है, they are saying that you should be very wary of taking impressions, which I don't really understand very much. But what protocol we should follow, as far as I feel, is that you have your sterilized trays, you load the impression material, spray some sanitizer on it, and take the impression. Once you've taken the impression, put it into your hypo solution for some time, maybe 20 minutes, and after that you can pour it. Okay, sir. That is my idea. So there is one more question. What is the difference between fumigation and fogging, and what's more recommended? Fumigation can be done only once, right? Like I was saying, that you do the fumigation, so you have to close all the doors, and it's very toxic. Fogging is something which can, yes, fogging is something which uses your sanitizer, so that can be done more often. And fogging again, I don't know, the lot of now the new trend has started. अब तो पहले फॉगिंग मशीन डेंटिस्ट्री में नहीं यूज होती थी, वो मच्छर के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अभी क्या है कि डेंटिस्ट्री में भी फॉगिंग मशीन आ गई हैं कि आप इसमें वो सैनिटाइजर डाल करके जो है आप उस कमरे में स्प्रे कर दो. If you do that, or you use your hypo on the floor and sanitize your equipment, I think it solves the same purpose. But anyway, choice is yours. You can use this fogging machine as well.
Anyone else with any more questions? सर एक क्वेश्चन मैं फिर से करना चाहूंगा, सचिन बोल रहा हूँ कि हाँ भाई, बहुत से आप हमारे लोगों को या हमको खुद को भी अपने क्लिनिक से निकलने वाले जो भी बायोमेडिकल वेस्टेज हैं, हाँ ये हमें क्लियर नहीं होता है कि किनको किस हाँ बॉक्स में डालना है और उनको किस तरीके से हमें उनका मैनेजमेंट करना है। जैसे कि एक्चुअली बायो नीडल है ये हाँ और या हमारा इम्प्रेशन मटेरियल है, कास्ट है ना, तो सब कुछ हम लोग क्या होता है नॉर्मली देखने में ऐसा आता है सब कुछ हम लोग येलो बॉकेट में डाल देते हैं ना? नहीं, उसमें तो उसमें जो है वो 4 बॉक्सेस आते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है ना। जी सर, तो वही और डिफरेंशिएट चाहूंगा कि बता दे तो थोड़ा। नहीं, वो उसके लिए जो है वो एक पोस्टर है, आप कहिएगा तो मैं आपको जी भेज दूंगा। वो जहाँ पे ये बॉक्सेस जी रखे हैं, अब हमने हमने जैसे ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो हमने अपने जो 5 जो हमारे चेम्बर्स हैं, हर चेम्बर में रखा है और बाहर रखा है, जहाँ पे कि हैंड वॉश हम कराते हैं पेशेंट का वेटिंग रूम में। तो जो उसमें उसमें एक क्राइटेरिया है, जैसे कि जो है वो ये आप रेड वाले में ग्लव्स डालेंगे, मतलब यू नो इट इज रिटन देयर। तो चूंकि वो वहीं पे जहाँ जहाँ बॉक्सेस पड़े हैं वहाँ वहाँ पेस्टेड है, इसलिए हमने जो है उसको, मतलब आई हैव नॉट लाइक रिमेम्बर्ड इट कम्प्लीटली लाइक दैट, बिकॉज इट इज रिटन देयर। तो वहीं से आप फुट कंट्रोल से अपना उठा करके उसमें डाल दीजिए। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वो जितना भी है, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, एक हमने बाहर जो है वो नर्सिंग होम के नीचे एक सेंट्रल अपना कलेक्शन सेंटर बनाया हुआ है। तो यहाँ से सब बॉक्सेस से जो है वो उस कलर के का जो वेस्ट है बैग्स में, वो जाकर के वहाँ पे बड़े वाले में चला जाता है, जो इनका काला वो बैग है। और वो एवरी सेकेंड डे हमारे यहाँ पे आदमी आता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट लेके जाता है, और वो उसी हिसाब से हमारा और नर्सिंग होम का बायोमेडिकल वेस्ट लेके जाता है। तो ये एक उसका बकायदा एक चार्ट आती है, वो चार्ट जहाँ भी आप बॉक्सेस रखें वहीं लगा दीजिए, तो उसमें जो है वो क्लियर होता है कि किस बॉक्स में आपको क्या डालना है। मतलब जो इम्प्रेशन मटेरियल अपना होता है ना, हाँ, वो हमको किस बॉक्स में डालना चाहिए, येलो में, रेड में या ब्लैक में मेरे या ख्याल ब्लू? से तो अब देखिए, ये तो मेरे को आई डोंट रिमेम्बर दिस बाय मेमोरी, बट इट हैज टू बी पुट वेर एवर यू आर पुटिंग योर ग्लासेस एंड अदर सच थिंग्स। अच्छा, ठीक है। और जो शार्प भाई इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम शायद टीन के वाले बॉक्स में डाल देते हैं ना, जो छोटे किसमें? बॉक्स होते हैं टीनों, जो हाँ छोटे हाँ बॉक्स हाँ, टीन के रखते हैं, जी जी जी, हाँ, नीडल हो चाहे आप वो। पहले, हाँ, उसको उसको पहले नीडल कटर से कट करने के बाद में, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। नीडल तो कटर यही तो थोड़ा रखना कुछ, मैंडेटरी है ना। जी सर, जी सर, यही छोटे छोटे हाँ, कंफ्यूजन होते हैं जब हम लोग उसको हम्म, सेग्रीगेट करते हैं, तो इसी पे हम हाँ। थोड़ा विस्तार में नहीं तो जानना चाह रहे थे। आप जैसे सेग्रीगेट करते हैं, तो इसमें अब हम लोग के पास वैसी बहुत चीजें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है नहीं। जी। आप सीधा जो है वो चार्ट जो है वो चार्ट हम्म चिपका हम्म दीजिए वहां पे, हम्म और हम्म, उसमें जो है वो आदमी को खुद ही पता चल जाएगा। हमने क्या किया है, वो चार्ट बेसिकली बना हुआ है मेडिकल पर्पज से। तो जी सर, जी उसमें सर, जो हमारे डेंटल के लिए जो चीजें हैं जो रेलेवेंट हैं, उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है रेड से, जी हमने इसको सर। हाईलाइट कर दिया है। तो 10 चीजें अगर एक बॉक्स में जानी है, तो उसमें हमारे डेंटल से रिलेटेड शायद 3 ही चीजें हैं जो जानी है। तो हमने हम्म। उसको अंडरलाइन कर दिया, दूसरे तरफ भी इसको भी अंडरलाइन कर दिया। तो अब बहुत ज्यादा आपको पूरा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि हाँ, अब आप ग्लव्स डालने जा रहे हैं, तो फर्स्ट बॉक्स में आपने डाल दिया कि वहां पे जो है लिखा है ग्लव्स इन दिस बॉक्स। तो वो जो पूरी चार्ट है जो मेडिकल की तरफ से बनी है, उसके अंदर जो है वो आपके जैसे बॉडी पार्ट्स हो गए, या ये सब चीजें जो हम लोग नहीं, हमारे यहाँ नहीं जनरेट होती हैं, वो सबका भी है। तो आप जो रेलेवेंट है आपके लिए उतने को अंडरलाइन कर दीजिए, और वो उसी हिसाब से जो है वो एक छोटी सी जो चार्ट है उसके, वो आप हर जगह पे लगा जी, दीजिए जहां जहां आपका ये चारों डब्बे आपके रखे हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Dr. Himanshu says it's impossible to wear PPEs, or what was the question? I
So the question is, it's impossible to wear PPE more than 3 hours. After that, it's not possible to do the second shift. Are we going to shift our clinic to one time, or can we remove our N95 mask after every patient for breathing properly? Now, that's a very tricky question, because now that is entirely up to you, because either, see, I'll tell you what, initially, in any case, once the lockup opens, you won't get to work more than 3 hours, because agar be very clear about this point, that अभी आपका पेशेंट इनफ्लो वो नहीं होने वाला है जो आपका प्री लॉकडाउन था, वो वैसे भी जो है वो 20% ही होगा। तो तब तक जो है वो आप अपना 3 घंटे की शिफ्ट में भी चाहे आप काम कर लीजिए, आपको आदत पड़ जाएगी, और उसके बाद फिर जो है वो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हम लोग फेस मास्क यूज करते थे, N95 नहीं यूज करते, नॉर्मल मास्क यूज करते थे ना पेशेंट में, तो सुबह से लेके शाम तक हम लोग फेस मास्क लगाते थे। और अभी जो है एक नॉर्मल आदमी फेस मास्क लगाता है, कहता है 15 मिनट बाद तो घुटन हो रही है। So it is all a matter of how you adjust to it. But you will have to adjust to it, whether you will take time. तभी तो मैंने बोला कि आप अभी से ही जो है 2 घंटा 3 घंटा यूज करना, आप उसको करना शुरू करो। और अभी तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है, वैसे भी जो है जब लॉकडाउन जब भी खुलता है, तो भी आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ही होंगे कि 2-3 घंटे में आपके निपट जाएंगे, और धीरे धीरे आपको फिर आदत पड़ ही जाएगी। हाँ, ये थोड़ा ख्याल रखिएगा कि N95 के बिना आप पेशेंट पे काम करना जो है वो, What the other thing you can do is, there is nothing wrong in it. आपने जो है वो ऊपर जो सवाल आप पूछ रहे हैं, वो मेरे को ये लग रहा है कि N95 आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ब्रीथ करने में। तो उसमें क्या है कि आपने जो ट्रिपल लेयर मास्क आपने पहना है N95 के ऊपर, आफ्टर से वर्किंग फॉर 1 hour you can go remove both the masks and throw away and breathe for some time normally, then throw away that the 3-ply mask. You put on the N95 again and wear another 3-ply mask on top of it. तो शायद आपकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। 3-ply mask तो आपका जो है वो you can change it in every patient, after every patient also, you can change it after an hour also. So you can do that, you can follow that. प्यास लगती है तो पानी पीना ही पड़ता है। अब उसमें अब गर्मी भी आ गई, तो आप अपना ये उतार दीजिए दोनों, उसके बाद उसको फेंक दीजिए। After you have had water, whatever you want to have, you wear this again, and over that you put another and 3-ply mask. Sir, can PPE be reused? PPE being reused is something which is a very tricky question. I have tried to, but you see, there are certain things which we cannot really comment upon, because if what you can do is that after you've used taken off your PPE, right? आप उसको जो है वो उसमें साबुन के पानी में डाल दीजिए, और उसके बाद जो है उसको एक बार ऑटोक्लेव करवा लीजिए। ऑटोक्लेव करा करके जो है वो नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद आप देखिए, उसमें पानी डाल के देखिए, अगर उसमें पानी अंदर नहीं जा रहा है तो probably it is okay, but मतलब I